Welcome to Aptitude Wala Maths. I hope all of you are doing really well. Today we are going to discuss DILR set which had appeared in CAT 2020 in third slot. Okay, as you know, if you have written CAT before or if you're preparing for CAT, you must have gone through CAT 2020 paper and you would have seen that in CAT this year there were two types of DI or LR sets which were there. There was two sets where there was six questions and three sets were there where there were only four questions per set. So today we are going to discuss a set where there are six questions. Obviously, six questions means the questions will be on the lengthier side, that the puzzle will take more time to crack, more time to solve. It'll be a tough nut to crack. So in exam, you have to take this decision whether to go for an easier set or less time consuming set, or a set where there are six questions. So there was a catch here. Obviously, many students actually fell prey to this lure, thinking that okay, there are six questions, so let us attempt this. If we are able to crack this puzzle, I'll be in a position to answer six questions straight away. But no, they also should have understood that because there are six questions, so obviously there will be a price attached to it. It will not be as easy as a four question set, and that was no indeed the case. So it was kind of a trade-off. Either you go for less time consuming but less rewarding set, or you go for a more time consuming but a highly rewarding set. So it was a trade-off. It was a decision that you had to take then and there on your feet. So CAT is not just testing on your mathematical skills or logical ability, not test, it is also testing you on managerial aspect. No, a manager is always confronted with taking decisions. So here also you have to decide whether to go for a six question set or a four question set. So that trade-off was there. Okay, so if you go for a six question set means that it'll be a tougher one. If you go for a four question set, actually it was an relatively easier set. So that trade-off was there and you had to take that decision. So it was a managerial decision also involved there. So CAT plays with your mental setup at multiple layers, not just in your hard skills, but also indirectly testing your managerial skills. Anyway, let us come to the question here. So here goes the question. Now, as you can see, the question says that a farmer had a rectangular land containing 205 trees. Okay, so we can say that total number of trees are 205. This we know. Total number of trees are 205. Okay. Then it says that he distributed that land among his four daughters, Abha, Bina, Chitra, and Dipti, by dividing the land into 12 plots along three rows XYZ and four columns 1, 2, 3, 4, as shown in the figure. So as you can see in the figure here, these are the 12 plots distributed across three rows XYZ and four columns 1, 2, 3, and 4. So this is my plot of land which has been divided into 12 plots. Okay. All right. Then the plots in the rows XYZ contained mango, teak, and pine trees respectively. So X was mango, Y was teak, and Z was pine. All right. So this is mango, this is teak, and this is pine. Okay. All right. Then each daughter got an even number of plots. Okay. There is one more sentence here. Each plot had trees in non-zero multiples of 3 and 4. So in each plot, there are some number of trees planted, which are, and the number of trees planted are multiples of 3 and 4, 3 or 4. So what are the possibilities here? If you take multiples of 3, it can be 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, and so on. It'll go on like this, or multiple of 4. So it'll be 4, 8, 12 we have already considered, so let us forget this. 16, 20, 24 is also written, so 28, 32, 36, 40, etc. So these are the possible number of trees which are planted in each of these 12 plots. And remember, these numbers are distinct. It is also
written this, that these numbers are distinct. As you can see, each plot had trees in, each plot has trees in zero, non-zero multiples of 3 or 4, and none of the plot had the same number of trees. So the number of trees were different. None of the plot had same number of trees. Okay, none. So these plots were not having different number of trees. Okay, now आगे क्या कहता है, each daughter got an even number of plot. सारे daughters को क्या मिले हैं, even number of plots मिले हैं. इसका मतलब क्या होगा, सी हमारे पास who are the daughters here, A B C and D. Let us call them A B C and D. So A B C D हमारे daughters हैं, इन्हीं में बटना है. कितने प्लॉट बटने हैं, 12 प्लॉट बटने हैं. Now 12 प्लॉट अगर इक्वली बढ़ता तो क्या होता, 3 3 3 3 3 4 जा 12 प्लॉट्स. लेकिन ये पॉसिबिलिटी है नहीं, बिकॉज हमको पता है कि नंबर ऑफ प्लॉट्स जो मिला है इनको, वो क्या मिला है, इवन मिला है. नाउ इवन होगा तो अगर हम एक इधर शिफ्ट कर दें और इसी तरह से एक इधर शिफ्ट कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उसी तरह से ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. ना 4 2 में से किसको 4 है किसको 2 है ये अभी हमें नहीं पता है, बट वी नो द कॉम्बिनेशन. द कॉम्बिनेशन इज 4 4 2 2 इन एनी ऑर्डर. वी डोंट नो द ऑर्डर येट. और इवन में एक और केस क्या हो सकता है, अगर हम यहां से दो और निकाल दें, यहां से तो एक निकलेगा तो यहाँ एक बचेगा, एक तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑड है. सो यहां से अगर हम लोग दो और निकाल दें तो ये दो हम लोग यहाँ डाल सकते हैं. अगर यहाँ डाल दें दो तो ये बन जाएगा कितना, 6 2 2 और 2. रिमेंबर, ये 6 2 2 2 जो है, इसमें भी हमें पता नहीं है कि ए को 6 मिला है या बी को क्या मिला है, ये मुझे पता नहीं है. बट मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा 6 2 2 2 in any order. Similarly, 4 2 4 2 in any order. It can be 2 4 4 2, it can be 2 2 4 4, it can be 4 4 2 2, anything. We don't know yet. But I know that there are only two ways to distribute no 12 in four groups such that each group has even number, and that is 4 4 2 2 and 6 2 2 2. तो इसी में से कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, आगे देखेंगे. ओके, ऑल राइट. नाउ आगे क्या कहता है, कहता है ईच डॉटर गॉट एन इवन नंबर ऑफ प्लॉट. ये तो हम लोग देख लिए. फिर कहता है इन द फिगर द नंबर मेंशन्ड इन द टॉप लेफ्ट ऑफ अ प्लॉट इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन दैट प्लॉट, while the letter in the bottom right corner is the first letter of the name of the daughter who got that plot. ओके, वंडरफुल. तो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ये अगर हम देखें तो ये प्लॉट में 12 ट्रीज है और ये किसको मिला है, सी को, यानी चित्रा को. सिमिलरली यहाँ पे 21 प्लॉट्स है, किसको, 21 ट्रीज है, सॉरी 21 ट्रीज है, ए को मिला है. 12 ट्रीज है, सी को मिला है. ये प्लॉट बी को मिला है, बट कितना ट्रीज है नहीं पता. ये प्लॉट सी को मिला है, ये प्लॉट में 9 ट्रीज है, ये प्लॉट में 28 ट्रीज है, ये प्लॉट ए को मिला है, कितने ट्रीज है नहीं मालूम है. तो सम डेटा इज गिवन, मेनी मोर डेटा आर टू बी डिटरमाइंड. सो हमें अब क्वेश्चन का सेंस मिल रहा है. यहाँ पे बेसिकली हमको ये पता करना है कि ये सारे प्लॉट्स किसको किसको दिए गए हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, यही हमें पता लगाना है. ओके, ऑल राइट. सम इंफॉर्मेशन इन द फिगर गॉट इरेज्ड. जैसा लग ही रहा है यहाँ पे कुछ फिगर, यहाँ पे सारे नंबर्स नहीं है, सारे नेम भी नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इरेज हो गई हैं. बट द फॉलोइंग इज नोन. तो इसी जो इंफॉर्मेशन दिया है, दिस 9 पॉइंट्स, दीज 9 पॉइंट्स विल हेल्प अस फिगर आउट कि यहाँ पे कितने कितने नंबर्स होंगे और वो प्लॉट किसको किसको मिलेगा. दिस इज द जॉब एट हैंड. यही हमें करना है, यही हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे होगा. ऑल राइट, ओके. अब आगे बढ़ते हैं. सो कहता है आभा गॉट 20 ट्रीज मोर देन चित्रा बट 6 ट्रीज लेस देन दीप्ति. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, विल डू दी सम ऑन द नेक्स्ट पेज. विल कीप कमिंग बैक ऑन द फर्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट पेज पे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग सारे सम्स करेंगे. सो कहता है आभा गॉट 20 ट्रीज मोर देन चित्रा बट 6 ट्रीज लेस देन दीप्ति. तो आभा को क्या मिला है, चित्रा से 20 ज्यादा बट दीप्ति से 6 कम. ओके, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. सो वी नो दैट आभा को जो ट्री मिला है वो क्या है, वो चित्रा से 20 ज्यादा है और दीप्ति से 6 कम है. सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट वाज 32 बट इट वाज नॉट आभा.
सो सब किसी भी प्लॉट में मैक्सिमम कितने ट्रीज हैं? 32 है। 32 से ज्यादा किसी भी प्लॉट में ट्रीज नहीं है, और वो किसको मिला है? वो आभा को नहीं मिला है, ये हमें पता है। ओके, ना इससे कई सारी चीजें हमें क्लियर हो रही हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि 32 इज द हाईएस्ट, राइट? सो 32 इज द हाईएस्ट। अगर 32 हाईएस्ट है, इसका मतलब 36 40 नहीं हो सकता है, 33 भी नहीं हो सकता है। तो 32 मिल गया। कुछ कुछ नंबर्स पहले से भी मालूम है, क्या क्या? 12 21। सो 12 इज नोन, 21 इज नोन, 32 इज नोन, और क्या है? 9 एंड 28। सो 9 इज नोन एंड 28 इज नोन। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 मिल गए। कितने प्लॉट है? 12 प्लॉट है। तो 7 नंबर हमें और डिसाइड करने हैं, और वो सभी क्या होंगे? 32 से कम वाले ही होंगे। ठीक है, सो ये भी समझ में आ रहा है। वंडरफुल। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? The number of teak trees in column 3 was double of that in column 2. Okay. So टीक ट्रीज किस में है? वाई में। वाई रो में है। देखिए, वाई रो में टीक है, एक्स रो में मैंगो है, जेड रोज में पाइन है। सो वाई रो में टीक है, तो ये चारों में टीक है। तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ टीक ट्रीज इन कॉलम 3 was डबल दैट इन कॉलम 2। तो 3 में, मतलब यहाँ पे जो टीक का ट्री है वो 2 का डबल है। ओके, तो अगर हम कहें कि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कितना होगा? 2x होगा। तीसरे वाले में, तीसरे कॉलम में जो है वो दूसरे कॉलम का क्या है? डबल है। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ कितना होगा? 2x होगा। ओके, फिर क्या कहता है? बट वॉज हाफ दैट इन कॉलम 4। बट वॉज हाफ दैट इन कॉलम 4, मतलब यहाँ जो नंबर है वो यहाँ का तो डबल है, लेकिन यहाँ का हाफ है। अगर ऐसा है तो यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा 4x। ठीक है, यहाँ कितना होगा? 4x। देखिए, अब ये नंबर इसका डबल और इसका हाफ है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ जो प्लॉट्स, इन तीनों प्लॉट्स में जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे उनका रेशियो क्या हो गया? 1:2:4। 1:2:4। और ये 1:2:4 है, तो यहाँ पे जो नंबर्स है इसमें हम देख सकते हैं कि 1:2:4 कैसे होगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। आइए चेक करते हैं, यहीं पे लिखता हूँ ऊपर। आई एम राइटिंग इट हियर। ओके, सो लेट्स सी। 1:2:4 कैसे होगा? अगर हम लोग यहाँ पे, जैसे अगर हम 3 से स्टार्ट करें, 3 से, तो 3 3 2 6, 3 4 12, तो क्या हो सकता है? 3 6 12। तो पहले सारे लिख लेते हैं, फिर रूल आउट करेंगे जो नहीं होगा। सो 3 6 12 इज एन ऑप्शन। ठीक है, देन अगर हम 6 से स्टार्ट करते, तो 6 6 2 12, 6 4 24, सारे हैं। ये 6 भी है, 12 भी है, 24 भी है। सो अनदर ऑप्शन कैन बी 6 12 and 24। वंडरफुल। ओके, देन अगर 9 से शुरू करेंगे तो 9 9 2 18 और 18 2 36। 36 तो जा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज 32 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 32 है। तो इसका मतलब 3 से हो गया, 6 से स्टार्ट हो गया, 9 से स्टार्ट नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो 3 से स्टार्ट हुआ, 6 से स्टार्ट हुआ, बट वी कैन नॉट स्टार्ट विद 9, सो दैट इज रूल्ड आउट। ओके, लेट्स कम हियर 4 से। 4 4 2 8 और 8 2 16 है ही है। 4 8 16 तीनों अवेलेबल है, तो ये भी हो सकता है। सो यू कैन से 4 8 and 16, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। देन 8 से करेंगे तो 8 16 और 32, 32 तो हो ही रहा है। सो 8 16 and 32 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो वी कैन ऑल्सो राइट 8 16 and 32। अब हमें चेक करना है कि इसमें से क्या हो सकता है। चार पॉसिबिलिटीज है। सी, आप कह सकते हैं कि और आगे क्यों नहीं चेक किए? तो और आगे चेक कीजिएगा तो क्या होगा? 16 32 64, तो 64 तो हो ही नहीं सकता है, तो इधर नहीं होगा। और तो हमें चार पॉसिबिलिटीज मिल रहा है। अब इस चार पॉसिबिलिटीज में से कौन सा फिजिबल है, ये हमें चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे? सी, इफ यू टेक 3 6 12, अगर आप यहाँ पे 3 6 और 12 डाल देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 12 ऑलरेडी आपने कंज्यूम कर लिया है। 12 यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड, सो यू कांट पुट 12 हियर अगेन, क्योंकि सारे पे प्लॉट्स में जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो डिस्टिंक्ट है, तो एक नंबर एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो 12 यहाँ यूज हो गया, तो 12 यहाँ यूज होगा नहीं। तो अगर ऐसा है, देन दिस इज रूल्ड आउट, ये नहीं हो सकता। 6 12 24, अगेन 12 यहाँ पे है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास क्या बचा? 4 8 16 और 8 16 32। 4 8 16 भी हो सकता है, 8 16 और 32 भी हो सकता है। अभी हमें पता नहीं है, तो विल सी
कि इन दोनों में से कौन सा होगा, बट यहाँ तो क्लियर कट नहीं होगा बिकॉज यहाँ 12 था और 12 तो हम लोग पहले ही यूज कर लिए हैं, तो 12 तो यहाँ पे दोबारा से नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नाउ आगे कुछ पॉइंट देखते हैं क्या लिखता है। कहता है बोथ आबा एंड बीना गॉट अ हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स देन दीप्ति। ठीक है, दोनों को, आभा और बीना, बोथ आभा एंड बीना गॉट अ हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स देन दीप्ति। तो आभा और बीना यानी ए और बी को डी से ज्यादा प्लॉट्स मिले हैं। अब आइए हम लोग प्लॉट्स कैसे बांटे थे, 4-2-4-2 और 6-2-2-2। अब just concentrate on 6-2-2-2, this one, just concentrate here। क्या ये पॉसिबल होगा, दिस वन 6-2-2-2 कहता है कि आभा और बीना दोनों को, ए और बी दोनों को डी से ज्यादा मिला है। तो अगर डी को 2 मिला है, सपोज डी को 2 मिला है, तो आभा और बीना को दोनों को 2 से ज्यादा मिलना चाहिए। तो 2 से ज्यादा तो एक ही है, दो तो है ही नहीं, बाकी तो 2-2 ही है। इसका मतलब आभा बीना दोनों को अगर डी से ज्यादा मिला है तो उसमें 2 से बड़े दो नंबर होने चाहिए थे, बट जब 2 से बड़ा एक ही नंबर है 6, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा होगा, 4-2-4-2 ही पॉसिबिलिटी होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और कह ही रहा है कि बोथ आभा एंड बीना गॉट अ हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स देन दीप्ति। इसका मतलब है कि ये आभा को मिला होगा 4 प्लॉट, बीना को मिला होगा 4 प्लॉट, दीप्ति को मिला होगा 2 प्लॉट। तो इसका मतलब है कि सी, चित्रा को भी कितना मिला होगा, 2 प्लॉट। अब देखिए दीप्ति को 2 है और आभा बीना दोनों को 4 है, इसका मतलब आभा बीना दोनों को दीप्ति से ज्यादा मिला। देखिए दीप्ति को 2 है, उससे ज्यादा बीना को भी है, उससे ज्यादा आभा को भी है। तो हमारा ये प्लॉट किसको किसको कितने मिले 12 में से, ये क्लियर हो गया है। वेरी गुड। सो हमें पता चल गया कि 12 प्लॉट में से 4 मिलेगा ए को, 2 मिलेगा सी को, 4 मिलेगा बी को और 2 मिलेगा डी को। ये भी हमें पता चल रहा है। ऑल राइट, फिर कहता है ओनली बी सी एंड डी गॉट कॉर्नर प्लॉट्स। तो बी सी डी को ही सिर्फ कॉर्नर प्लॉट्स मिले हैं। इसका मतलब है कि ये जो कॉर्नर प्लॉट है, यहाँ किसको मिला, बी को, यहाँ किसको मिला, सी को। यहाँ और यहाँ भी बी सी डी में से ही कोई हो सकता है, ए नहीं हो सकता है। अच्छी बात है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये पता है कि यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये भी समझ में आ रहा है, इन दोनों पे ए नहीं आएगा। ओके, ऑल राइट। देन अब अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें, सो क्या कहता है, दीप्ति गॉट 2 एडजॉइनिंग प्लॉट्स इन द सेम रो। दीप्ति को क्या मिला है, 2 एडजॉइनिंग प्लॉट मिला है, किसमें, सेम रो में। ठीक है, सो दीप्ति को एक ही रो में 2 एक साथ मिला है। तो या तो ये दोनों हो सकता है, या ये दोनों हो सकता है, या ये दोनों हो सकता है। नहीं, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। तो ऐसे देखें तो कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ से तो अभी क्लियर नहीं है, तो इसको आगे देखेंगे। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि डी को 2 प्लॉट एक साथ मिला है। डी को प्लॉट कितने मिले हैं, 2 ही प्लॉट मिला है, और दोनों प्लॉट क्या होगा, एक ही रो में एडजेसेंट होंगे। तो एक ही रो में एडजेसेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है। तो अभी कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये बाद में पता चलेगा कौन से 2 एडजेसेंट होंगे। तो विल होल्ड फॉर द टाइम बिंग। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखता है। बीना वॉज द ओनली वन हु गॉट अ प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। तो बीना एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसको कि चारों कॉलम में भी मिला और तीनों रो में भी मिला। ठीक है, तो ये जो 4 प्लॉट है, इसको हमको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है बीना के चारों प्लॉट को, कि वो चारों कॉलम भी कवर करे और तीनों रो को भी कवर करे। ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ से। तो अगेन इसके बारे में बाद में सोचेंगे, बिकॉज इसमें भी हो सकता है ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो। सो और नीचे आते हैं, क्या कहता है, 8th पॉइंट, Chitra and Dipti did not get plots which were adjacent to each other, either in row or in column or in diagonal। मतलब सी और डी को कोई दो ऐसे कभी भी एडजेसेंट प्लॉट नहीं मिला है। तो जहां सी है उसमें ऊपर नीचे भी नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे भी डी को नहीं मिल सकता है, दाएं बाएं भी डी को नहीं मिल सकता है, और डायगनली भी डी को नहीं मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे सी है, कॉन्सेंट्रेट हियर, अगर यहाँ पे सी है तो इसका मतलब यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे डी नहीं होगा, और यहाँ पे भी डी नहीं होगा। ये तीनों पोजीशन में डी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, ये तीनों जगह डी नहीं हो पाएगा। ये भी हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। ऑल राइट, नाउ अगर इन तीनों जगह पे डी नहीं होगा
तो डी जाएगा कहाँ? हमको ये भी पता है कि डी का दोनों प्लॉट एडजेसेंट है। तो अगर एडजेसेंट है तो यहाँ ये तो चला गया, ये तो हो नहीं सकता डी का एडजेसेंट प्लॉट। ये दोनों भी डी का एडजेसेंट प्लॉट नहीं हो सकता, बिकॉज डी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। नाउ यहाँ भी सी है, तो इसके बगल वाला भी डी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी डी नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी डी नहीं आएगा। तो इसका मतलब डी कहाँ आएगा? यही दोनों प्लॉट हो सकता है डी को। तो यहाँ से हमें बहुत क्लियर पता चल रहा है कि डी को एक प्लॉट यहाँ मिलेगा और डी को एक प्लॉट यहाँ मिलेगा। ये दोनों हमें फिक्स हो गया कि ये दोनों डी का ही प्लॉट है। तो डी के दोनों प्लॉट हमें हमें पता चल गया, डी के दोनों प्लॉट हमें समझ में आ गया कि डी को जो दो प्लॉट मिला है वो कहाँ है, वो यहाँ और यहाँ है। ये हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ से। वंडरफुल। नाउ अब ऐसे समझिए, एक और चीज समझिए। हमें ये पता था कि ये जो x 2x और 4x आया है, ये क्या है? ये 4 8 16 होगा या 8 16 और 32 होगा। अब थिंक अबाउट 8 16 32। अगर हम इसको 8 16 और 32 कर दें तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 16 आएगा और यहाँ 32 आएगा। यहाँ अगर 32 आ गया तो ये 32 प्लॉट्स किसको मिला? आभा को मिला। आभा को मिला ना? लेकिन आप 32 ट्रीज वाला सेकेंड पॉइंट पढ़िए क्या कहता है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट वाज 32 बट इट वाज नॉट विथ आभा। ये किसके पास नहीं था? ये आभा के पास नहीं था। इसका मतलब है कि यहाँ 32 आएगा नहीं। अगर यहाँ 32 नहीं आएगा तो 8 16 और 32 भी रूल आउट हो गया, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ये भी छट गया। तो क्या बचा? 4 8 और 16 ही बचा। तो हमें ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या आएगा? 4 8 और 16। तो ये भी समझ में आ गया। वंडरफुल। ये 4 है, ये 8 है और ये 16 है। ठीक है, ये तीनों भी हमें पता चल गए। तो और हमें क्या क्या प्लॉट मिल गए? हमें मिल गया 4 8 और 16। तो इसको भी हम लोग सर्कल कर लेते हैं। एक 4 हो गया, एक 8 हो गया और एक 16 हो गया। 4 8 16 28 32 9 12 और 21 कितने हो गए? 3 और 2 5 और 3 8। 8 प्लॉट तो निकल गया। अब 8 प्लॉट निकल गया तो बाकी क्या बचा? 4 प्लॉट। 8 और 4 12, 12 प्लॉट है हमारे पास। तो 8 प्लॉट जब आपको मिल गया, 8 प्लॉट जब आपको मिल गया तो आपको 4 ही प्लॉट और चाहिए। चारों प्लॉट हमें देखना है कि वो कौन कौन से नंबर्स होंगे। वो सारे नंबर्स 32 से कम होंगे। तो 32 से कम नंबर क्या क्या है? 27 24 18 15 6 3 20। इन्हीं में से कोई चार नंबर है, ये हमें पता करना है कौन सा चार नंबर होगा। ठीक है, सो इसको इसको भी सोचेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट अभी भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। क्या कहता है? द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज वाज डबल द नंबर ऑफ टीक ट्रीज। तो मैंगो ट्री का नंबर टीक ट्रीज का डबल है। ओके, तो इस रो में तो सारे नंबर्स मालूम चल गए ना। कितना हो रहा है? 8 4 12 16, 12 और 16 28 और 21 49। ये हमें पता है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ये कितना है? 49। तो अगर ये टोटल 49 है, सेकेंड रो 49 है, तो मैंगो रो में इसका डबल यानी कितना आएगा? 98। 98 और इस 98 में से 12 यहाँ चला गया, तो जो बच गया वो बचा हुआ कितना होगा? 98 माइनस 12 यानी कितना? 86। तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इस रो में 12 निकल जाने के बाद जो बच रहा है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों का सम कितना आएगा? इन तीनों का सम आएगा 86। ठीक है, तीन नंबर्स का सम क्या आएगा? 86। तो हमें देखना है कि इन जो बचे हुए नंबर्स हैं इसमें से कौन से तीन नंबर का सम 86 आएगा। ठीक है, ये हमें एक काम बचा हुआ है, प्लस यहाँ यहाँ का काम। तो हमें काफी कुछ पता चल गया है, कुछ और हमें पता करना है। ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट अस ऑल्सो टेक अ क्विक लुक एट द क्वेश्चन। हो सकता है कि अभी तक जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, डेटा का इंटरप्रिटेशन किया है, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेटा को एनालाइज किया है, उससे हो सकता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। लेट अस सी इफ दैट इज पॉसिबल और नॉट। ओके, सो कहता है हाउ मेनी मैंगो ट्रीज वर देयर इन टोटल। एज यू कैन सी, मैंगो ट्रीज टोटल कितने थे? 98 थे। कितने थे? 98। नहीं, सो no, we can say the answer is how much? 98. So how many mango trees were there? 98। तो ये हमें समझ में आ रहा है। यानी कि डीआई में एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट सेट भी है, आपके पास थोड़ा टाइम भी बचा है, 5 मिनट भी बचा है, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियरली गिविंग यू एन आइडिया अबाउट योर एग्जाम टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी।
what should be the strategy? Even if you have 5 minutes, don't lose hope that no, in 5 minutes how can I crack a puzzle. Concentrate on bigger ideas, easy no or low hanging fruits. Pluck those low hanging fruits, the easy ones. As you can see, not a thorough analysis, a full analysis was required to answer the first question. Now this no is answered even with partial analysis. So you may get some questions which will be easy to answer. So don't just get bogged down or overwhelmed by the difficulty level of a set. No, you in a difficult set also you may have some questions which are easy, which are relatively easy to find out. Okay, let us look at the next one. Next one क्या कहता है? Which of the following is the correct sequence of trees received by A, B, C and D? Now this we need to calculate. इसमें भी आप एक नो चेक कर सकते हैं. जैसे I'll give you more insights here. जैसे if you see here, जैसे अगर आप देखें तो हमें ये पता है कि आभा के पास जो ट्रीज है वो दीप्ति से 6 कम है और चित्रा से 20 ज्यादा है. तो आप इस रिलेशन को भी यूज करके चेक कर सकते हैं कि ए सी डी का तो रिलेशन मिल जाएगा. तो ए सी डी का रिलेशन से चेक करते हैं कि क्या एक ही ऑप्शन है या मल्टीपल ऑप्शन है. आप ये तो चेक कर ही सकते हैं ना. दिस नथिंग रॉन्ग इन चेकिंग थ्रू दिस रिलेशन. हमें ये तो पता है नंबर ऑफ ट्रीज विद आभा इज 20 मोर देन नंबर ऑफ ट्रीज विद सी एंड 6 लेस देन नंबर ऑफ ट्रीज विद डी. तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी कि क्या ऐसा है. जैसे अगर इसी में आइए, नाउ डी के पास 50 है तो 50 से 6 कम, आभा के पास 6 कम है. 50 में से 6 गया कितना हो गया? 50 माइनस 6 इज 44. और चित्रा से 20 ज्यादा, तो देखिए 24 प्लस 20 कितना हो रहा है? 44. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलरली कम हियर, 60 से 6 कम है कितना होगा? 54. तो 54 हो ही रहा है. और सी का पास 34 है, इससे 20 ज्यादा, तो 20 ज्यादा क्या है? 54 है. इसका मतलब कि दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें कि वो कंडीशन मीट हो रहा है. तो इसको आप अगर इफ यू ट्राई टू प्ले स्ट्रीट स्मार्ट, यू विल नॉट बी एबल टू नो गेट टू द आंसर हियर, बिकॉज यहाँ पे ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि वो कंडीशन मीट हो रहा है. तो बहुत बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें कि हम आसानी से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है उसी से कुछ क्वेश्चन आंसर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम उस तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू do some more analysis. Okay, let us now come back to the question here. Okay, so अब हमारे पास जो बचा हुआ है इंफॉर्मेशन उसको यूज करते हैं. हमारे पास इसको मैं अगले वाले पे लिख लेता हूँ. जो जो हमें पता है, लेट अस राइट इट डाउन हियर इन दिस वन. हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे डी होगा, ये हमें पता चल गया. और जो प्लॉट्स में जो नंबर्स हैं, जो प्लॉट्स में नंबर्स हैं वो भी हमें, और ये हमें पता चल गया. दिस नंबर इज 4, दिस नंबर इज 8, दिस नंबर इज 16. तो जो नंबर्स चले गए वो कौन कौन से हैं? नंबर्स जो चले गए हैं वो है 4, 8, 16, फिर 12, 21, 9, 28. इतने तो हमने प्लॉट कर दिए. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमने प्लॉट कर दिए. जो एक और आएगा कहीं वो क्या आएगा? 32 आएगा. और बाकी हमें पता ही नहीं है. तो जो हमें ये हमने प्लॉट कर दिया है, ये हमें प्लॉट करना है कहीं, और बाकी नंबर्स के बारे में पता है नहीं. तो कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 नंबर हमें और पता करने हैं. ठीक है, वी हैव टू फाइंड 4 नंबर्स. ओके, हमें ये भी पता है कि यहाँ पे टोटल है 49 और यहाँ टोटल है फर्स्ट रो में 98 है और सेकंड रो में कितना है? 49 है. 98 और 49. तो जो बाकी बचे वो कितना होंगे? यहाँ पे होंगे. तो यहाँ पे कितने होंगे? जेड में होगा 205 माइनस 98 प्लस 49. यहाँ पे होगा टोटल थर्ड रो, जेड रो में. ठीक है. ओके, सो वी कैन डू दिस कैलकुलेशन, आप कर लीजिएगा. बट अब ये हमें चेक करना है कि 98 में से 12 निकल गया तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो में इन तीनों का सम कितना होगा? 86. सो 98 माइनस 12, 86 होगा इन दीज थ्री. इन तीनों को मिला के कितने होने चाहिए? 86 होने चाहिए. ये भी समझ में आ रहा है. ठीक है. ओके, ऑल राइट. नाउ इसी को यूज करके हमें यहाँ पे नंबर्स निकालने हैं. सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग द नंबर्स नाउ. सी, अब हमें यहाँ पे नंबर्स कैसे निकालेंगे? क्या क्या नंबर बच गया हमारे पास, पहले उसको देखते हैं. 3 6
15, 18, 24, 27, 30, ये सारे बचे हुए हैं। 3, 6, 15, 18, 24 एंड 27। सो इसको लिख लेते हैं 3, 6, 15, 18। ओके, सो 3, 6, 15, 18 बोलेंगे। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? तो मैं सारे ऑड लिख रहा हूँ, सारे इवन लिख रहा हूँ, ठीक है। 3, 6, 15, 18, देन 24, 27, 30। ओके, सो 24, 27, 30, 24, 27 और 30। और क्या बच रहा है? 4 के मल्टीपल्स में क्या बच रहा है? 20। और 32 का तो कुछ होगा, तो एक ही बच रहा है, कौन सा? 20। सो एक और जो बच रहा है वो क्या है? 20। अब इसी में से हमें 4 नंबर निकालने हैं। वो 4 नंबर कौन सा होगा? वी डोंट नो, बट वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर हाउ मेनी? 25। 25 ट्रीज हैं, सॉरी 205। 205 ट्रीज है, इसमें से ये निकल गए। तो एक बार इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो रहा है। सो देखिए, ये था ये हो गया आपका 4 और 8, 12, 12, 16, 28, 28, 12, 40, 40 निकल गए। 40 और 30, 70, 70 और इनका सम भी 60, 130, 130 निकल गया। इन सब का सम कितना हो गया? 130। तो जो बच गए हमारे पास 4 प्लॉट, 4 प्लॉट्स बच गए, उसमें जो ट्रीज होंगे वो कितने होंगे? 205 माइनस 130 कितना होगा? 75। 4 प्लॉट्स में 75 ट्रीज और होंगे, तो यहां से 4 ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम कितना हो जाए? 75 हो जाए, ठीक है। अब देखिए, 4 नंबर का सम, जैसे मान लेते हैं कि नंबर्स हैं n1, n2, n3, n4, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। 4 नंबर का सम 75 है। 75 इज अ ऑड नंबर। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। अब 4 नंबर का सम ऑड कब होगा? हम ये कह सकते हैं या तो 3 ऑड हो और 1 इवन हो। 3 नंबर ऑड हो तो 3 नंबर ऑड होगा, तो 3 ऑड का सम ऑड, ऑड प्लस इवन ऑड रहेगा। या 1 ऑड हो और 3 इवन। एक ऑड होगा, 3 इवन होगा, तो 3 इवन का सम इवन, और इवन प्लस ऑड इज ऑड। तो 75 ऑड है, तो ऐसे ही हो सकता है, या तो 3 ऑड होगा, 1 इवन होगा, या 1 ऑड होगा और 3 इवन होगा। ऑलराइट, अब इसको भी ले लेते हैं, एक बार कंसीडर कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी होगा। 3 ऑड एंड 1 इवन। तो 3 ऑड है, तो ऑड तो हमारे पास 3 ही है ही। 3, 15, 27। तो आपको क्या लेना होगा? 3, 15 और 27 लेना होगा। तो इनका सम कितना हो गया? 18 और 27, 45 निकल गया। 45 निकल गया, तो हमें चारों का सम कितना चाहिए? 75। चारों का सम कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। नाउ इस 75 में से इन सब का सम हो गया 45, तो हमें एक इवन जो लेना है वो 30 लेना पड़ेगा। 30, तो 30 ले लिए। तो 3 ऑड 1 इवन का केस पॉसिबल है। अब चेक कर लेते हैं एक और 3 इवन का केस पॉसिबल है या नहीं है। सो 1 ऑड एंड 3 इवन। नाउ एक ऑड 3 इवन। अब एक ऑड लेना है, तो ऑड हम 3 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं और 27 भी ले सकते हैं। सो लेट अस टेक दीज 3 केसेस, 3, 15 एंड 27। ओके, अब आपने 3 ले लिया, तो बाकी 3 का सम कितना होना चाहिए? 72, बिकॉज 4 का सम कितना है? 75। 75 में से 3 निकल गया, तो कितना बचा? 72। अब 72 कैसे होगा, यहाँ पे चेक कीजिए। अब देखिए, 18, 24 कितना हो गया? 42। 42 प्लस 30 कितना हो गया? 72। सो वी कैन से 18, 24 और 30। तो ये सम कितना आ जाएगा? 75। यहाँ भी 75, यहाँ भी 75। अगर हम 15 लेते हैं, 75 में से 15 निकल गया, तो कितना बचा? 60। 60 कैसे हो सकता है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, 6, 24, 30, 30 और 30, 60, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। 6, 24 और 30, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर हम 27 ले लेते हैं, तो 75 में से 27 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 48। तो 48 कैसे होगा, एक बार ये भी सोच लेते हैं। तो अगर हम 6, 18, 24 कर दें, 24 और 24 कितना हो जाएगा? 48। देखिए, 6, 18, 24, 24, 48। तो यहाँ पे भी पॉसिबल है। 6 हो गया, 18 हो गया और 24 हो गया। यानी कि 4 नंबर का सम 75 4 तरीके से हो सकता है। लॉट ऑफ हेडेक। That is why I say this question is really tough. In exam, you can go paranoid. You can go, no, you can completely become insane if you don't have that kind of a temperament. So this was really a tough nut to crack, because everywhere you have there are bottlenecks. तो कुछ आप लगेगा कि हाँ अब ठीक चल रहा है, then again there no there will be some blockage.
you'll have to resolve that blockade again and then move ahead. Again, if you move ahead, then again you'll find one blockade. So lot of blockages, lot of bottlenecks had to be resolved while solving this puzzle. So this was a really good puzzle, testing puzzle. But if you don't have that kind of a temperament into the exam, you may become insane, you may lose control also. So no, you have to decide, where to, whether, so those students who would have picked this set thinking that I'll solve and get 6 questions, in one stroke, no, they were in for a huge surprise, a lot of surprise here. Okay, ऑल राइट. सो हमें 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिल रही है. अब इस चारों में से कौन सा पॉसिबिलिटी होगा ये हमें पता नहीं है. 7 नंबर, हमें 8 नंबर मिल गए, 3 3 6 7 और एक 8. 4 नंबर का सम 75 होना चाहिए था, 75. वो 4 नंबर का सम 75 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. कौन सा ले, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है. हमारे पास एक और जानकारी है, उससे पता लग सकता है. क्या जानकारी है? इस रो में तीनों का सम कितना आना चाहिए? 86 आना चाहिए. बिकॉज 98 में से 12 निकल गए तो 88 86 86 आना चाहिए. 2 3 और 4 का सम. अब इन तीनों का सम 86 आएगा कैसे? 86 कैसे बनेगा ये पहले सोचना पड़ेगा. तो सी 86 के लिए हम अगर देखें, बड़ा नंबर से शुरुआत करते हैं. सबसे बड़ा नंबर क्या है? 32. सो अब 32 ले लीजिए. नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है? 30. सो 32 30 को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 64. 64 हो गया, सॉरी 62. 62 हो गया तो हमें 24 और चाहिए होगा. 32 30 और 24, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 86. देखिए 62 प्लस 24 कितना आएगा? 86. यानी कि 86 बनेगा 32 30 और 24 से. किससे? 32, दिस वन, 30 एंड 24. अब आप एक बात बताएं, अगर हम 32 30 और 24 से कर सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सबसे बड़ा नंबर तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाके 86 होगा. अगर आप 27 लेते हो, सपोज इंस्टेड ऑफ दीज टू नंबर्स इफ यू टेक 27, अगर आप सपोज 30 की जगह 27 लेते हैं तो 3 घटा रहे हैं, तो आपको 33 चाहिए. 33 तो है नहीं. अगर आप 24 की जगह 27 लेते हैं तो आपको 24 की जगह 27 लेते हैं तो आपको 3 घटाना पड़ेगा. तो 21 चाहिए. तो 21 तो आपने पहले ही ले लिया है, 21 तो यहाँ पे है ही नहीं. इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, 32 30 एंड 24. सो आई हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, दिस वन. सो अब हमें समझ में आ रहा है कि हम इसमें से ऐसा वाला, इसमें से वो वाला केस लेंगे जिसमें कि 32 30 और 24 हो. 32 तो है ही है, तो ऐसा लेंगे जिसमें 30 हो और 24. अब आइए देखते हैं. यहाँ पे 30 तो है बट 24 नहीं है. सो दिस इज रूल्ड आउट, दिस इज नॉट पॉसिबल. लेकिन यहाँ पे 30 भी है और 24 भी है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी. यहाँ पे भी 30 है और 24 है, अगेन अहेड है. तो केस बन रहा है, 30 है 24 है, ये भी पॉसिबल है. टू फर्दर नो डिग इवन मोर डीपर, तो यहाँ पे 24 तो है बट 30 नहीं है. सो दिस इज रूल्ड आउट. सो अगेन हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. सो दोनों में से अब हमें फिर से डिसाइड करना है कि कौन सा होगा. सो ये क्वेश्चन इतना इजी था नहीं जितना हमें लग रहा था. ये इसमें काफी ज्यादा हमें एनालिसिस करना पड़ेगा. 3 18 24 30, 5 6 24 और 30, इसमें से कौन सा लिया जाए, बिकॉज दोनों में 24 30 हो रहा है. ठीक है, ओके. अब इन दोनों में से कैसे हमें समझ में आएगा कि कौन सा लिया जाए? तो इसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लॉट्स, नंबर सारे नंबर से रिलेटेड है ना, तो सारे नंबर वाले रिलेशन ढूंढिए. एक और नंबर का रिलेशन है जिसको अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया है, a इज इक्वल टू सी प्लस 20 इज इक्वल टू डी माइनस 6. ये वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं, हो सकता है इससे कुछ क्लैरिटी आ जाए. नाउ ए का चेक करते हैं, ए को क्या क्या मिला है. ए को कितने प्लॉट्स मिले हैं? ए को चार, ए को 4 प्लॉट मिले हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे अभी हमें प्लॉट वाला एक बार चेक कर लेते हैं कि डी का तो दोनों प्लॉट हो गया. नाउ सी के बगल में, तो डी के तो दोनों प्लॉट हो गए. हमें ये पता है कि ए और बी दोनों को 4 4 प्लॉट मिले हैं, सी और डी दोनों को 2 2 प्लॉट मिले हैं. तो सी, तो डी के तो दोनों प्लॉट हो गए, तो ये तो हो गया. सी का भी दोनों प्लॉट हो गया, तो सी का भी हो गया. अब बचा किसका है? ए के 4 प्लॉट और बी के 4 प्लॉट. अब हमें ये डिसाइड करना है कि ए और बी के 4 प्लॉट कैसे होंगे. बी के बारे में क्या पता है? बी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में. वो क्या है? Bina, seventh part. Look at the seventh part. Bina was the only one who got a plot in each row and each column. Each row and each column.
ओके, सो बीना को बी को ऐसे देना है कि सारे रो में हो सारे कॉलम में हो। तो देखिए अम, पहला वाला रो में तो पहला वाला कॉलम में तो है, सेकंड कॉलम में नहीं है, और सेकंड कॉलम में नहीं है तो यहाँ दे सकते हैं, तो यहाँ एक दे देते हैं बी को, तो बी का एक और सेकंड कॉलम भी हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड कॉलम में यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। सी, थर्ड कॉलम में यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। फोर्थ कॉलम में डी और ए, ये दोनों तो फिक्स हो गया है, तो फोर्थ कॉलम में यही एक जगह बच रहा है, तो फोर्थ कॉलम में अगर हमको देना है बी को तो हम कहाँ देंगे, यहीं पे दे सकते हैं। ओनली वन वे। सी, हमें चारों कॉलम में हमको बी को देना है, नहीं तो बी का इस कॉलम में तो है ही है बी, इस कॉलम में हमने बी को दे दिया, इस कॉलम में यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। सो विल सी, इस कॉलम में डी और ए दो तो फिक्स था, तो बी को देना ही था, तो बी को लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी बचता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि बीना को यहाँ दे कि यहाँ दे, थर्ड कॉलम में भी देना है तो कहाँ दे। तो हम किसे डिसाइड करेंगे, उसको चारों रो में भी, चारों कॉलम में भी देना है और तीनों रो में भी देना है। तो देखिए एक्स रो में तो बी हो गया, जेड रो में भी बी हो गया, लेकिन वाई रो में बी आया नहीं है, तो वाई रो में बी आना चाहिए, तो इन दोनों में भी आना चाहिए, थर्ड कॉलम में भी आना चाहिए और सेकंड रो में भी आना चाहिए। मतलब कौन सा जगह, ये वाला जगह। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। अगर ये बी हो गया तो जो बाकी अब बचे, सी बी का कौन कौन सा हो गया, एक, दो, तीन और चार, चार तो बी के हो गए, तो बी के भी चारों मिल गए आपको। अब क्या बचा, ए के चार, तो चार में से दो तो पहले ही मिल चुका है, तो जो बच गया वो ए है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। ये समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि कौन कौन सा प्लॉट किसको मिला है। नंबर्स अभी भी हमें कुछ सेट करने हैं। ओके, नाउ मैंने क्या बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले, ये वाला रिलेशन हम लोग यूज नहीं किए, वी हैव नॉट यूज दिस रिलेशन। So number of plot with A is equal to C plus 20 is equal to D minus C. Let us now use this also. Now A के कितने प्लॉट है, देखिए यहाँ पे 21 है, यहाँ 4 है, 21 4 25, 25 और 16 41, 41 प्लस 9 50। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए का टोटल नंबर ऑफ प्लांट ट्रीज कितने मिले हैं, 50। अगर इसको 50 मिले हैं तो इसका मतलब सी को कितना होगा, 30, 30 20 20 50 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 56। ये भी हमें समझ में आ रहा है, यहाँ कितना होगा 56। नाउ डी को 56 देना है, तो 56 देना है, और हमको पता है कि इसमें जो रोज में, इस वाले रो में जो नंबर्स हैं वो क्या है, 32 30 और 24। अब 32 30 और 24 में से डी के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 56 हैं। तो 56 कैसे बनेगा, 32 प्लस 24। तो एक जगह 32 जाएगा, एक जगह 24 जाएगा, कहाँ क्या जाएगा नहीं पता, 32 24 या 24 और 32। ठीक है, अगर ये दोनों फिक्स हो गया तो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 30 ही आएगा, और तो कुछ होगा नहीं, 30 ही आएगा। ओके, ऑलराइट। नाउ सी का, अब देखिए यहाँ पे सी को कितना कितना मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए। सी को टोटल कितना मिलना चाहिए, 30। 30 में से यहाँ पे कितना मिल चुका है, 12। अगर यहाँ 12 मिल चुका है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 30 माइनस 12 कितना, 18। यानी हमें 18 चाहिए होगा, ऐसा वाला लेना होगा केस जिसमें 18 आए। नाउ कम हियर, दिस वन। यहाँ पे अगर आप देखें तो 18 है इस वाले में, लेकिन इस वाले में 15 6 24 30, यहाँ पे 18 है ही नहीं। इसका मतलब कौन सा होगा, यही वाला केस होगा, यही वाला, ये वाला केस नहीं होगा। वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन, रियली ट्रिकी वन। सो इसका मतलब यही वाला केस होगा। सो 3 18 24 30, तो हमारे पास सारे नंबर्स मिल गए, 3 18 24 और 30, ये चारों नंबर, 32 और ये सब हमारे नंबर्स फिक्स हो गए। अब हमें बस डालना है कहाँ, कौन कौन सा हो गया, देखिए इसमें 12 30 32 24 का पता नहीं कौन सा पोजीशन जाएगा कहाँ कहाँ, बट ये पता चल गया। सो 12 30 32 24 या 24 30, 21 4 8 16, 18 9 28। अब एक ही और बच रहा है, कौन सा, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो हियर 3 विल कम। आपका पूरा जो ये चार्ट था, ये जो प्लॉटिंग थी, ये सब कुछ पता चल गया, सारे नंबर्स भी पता चल गए आपको, और सारे किसको किसको क्या मिल रहा है ये भी हमें पता चल गया है। नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन, इनफैक्ट एक्सेलेंट पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन का आंसर पहले ही आ चुका है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीज रिसीव्ड बाय ए बी सी एंड डी। अभी हम लोगों ने देखा था
ए को कितना मिला था 50, सी को 30, डी को 56। तो 50 है, 30 है, 56 है, कहाँ पे है देखिए, 50 है, 30 है और 56 है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पाइन ट्रीज, हाउ मेनी पाइन ट्रीज डिड सी रिसीव, सी को कितने पाइन ट्रीज मिले, ये चेक करते हैं। ये हमारा फाइनल प्लॉटिंग था, सी को पाइन ट्रीज, पाइन किस में है, इस वाले में, ये वाला, ये तो मैंगो है, ये टीक है और ये पाइन का रो है। तो सी को कितने पाइन मिले, तो इसी रो में देखिए सी कौन सा है, ये वाला, कितने यहाँ पे 18 है, सो 18 हो जाएगा, सो द आंसर इज 18। ओके, 18 है भी, ग्रीन वन। फिर क्या कहता है, हु गॉट द प्लॉट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, हु गॉट द प्लॉट विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज एंड हाउ मेनी ट्रीज डिड दैट प्लॉट हैव। आइए देख लेते हैं, सबसे कम ट्रीज कहाँ पे है, 3, और किसको मिला है, बीना को, सो बीना को मिला है सबसे कम, और कितने प्लॉट, कितने ट्रीज हैं वहां पे, सिर्फ 3 ट्रीज है। ओके, सो बीना एंड 3 ट्रीज, so this is our answer, बीना एंड 3 trees. Next one, which of the following, which of the following statements is not true? Okay, पहला क्या कहता है, चित्रा को 12 मैंगो मिले हैं, चित्रा को, तो ये देखिए ये मैंगो का रो है, और चित्रा, चित्रा को कितने मिले हैं, 12 मैंगो ट्री, तो ये तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आभा गॉट 41 टीक ट्रीज, इसको भी चेक कर लेते हैं, आभा को, टीक कौन सा है, वाई रो, आभा को कितने मिले हैं 41, चेक करिए, आभा यहाँ पे है तो 21, आभा यहाँ पे है 4, आभा यहाँ पे है 16, तो 16 4 20 और 21 41, यानी आभा को कितने टीक ट्रीज मिले हैं, 41 ट्रीज मिले हैं। देखिए 21 + 4 + 16 41, तो ये भी करेक्ट है, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दीप्ति गॉट 56 मैंगो ट्रीज, इसको भी चेक कर लेते हैं, दीप्ति तो यहीं पे है और दोनों क्या है, मैंगो ट्रीज, तो 32 + 24 कितना हो जाएगा 56, तो ये भी सही है, तो तीनों सही है, इसका मतलब क्या आंसर होगा, यही आंसर होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, पहला 3 स्टेटमेंट ट्रू मिल गया, यानी कि चौथा ही क्या होगा, गलत होगा। अब चेक करके भी देख सकते हैं, बीना गॉट 32 पाइन ट्रीज, चेक कीजिए, पाइन ट्रीज, पाइन कौन सा है, ये वाला, बीना को कितना मिला है 32, हाँ, देखिए बीना को कितना मिला है यहाँ पे 3, बीना को यहाँ कितना मिला है 28, 28 + 3 कितना होगा 31, नॉट 32, सो 31 ट्रीज है बीना को, तो इसका मतलब 32 नहीं है, तो यही वाला आंसर सही है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, फिर क्या कहता है, विच कॉलम हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, किस कॉलम में सबसे ज्यादा ट्रीज है, आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें पता नहीं है, जैसे कि 32 और 24 में कौन कहाँ जाएगा ये नहीं पता है, बट नेवरदिलेस इसको ऐड करते हैं। देखिए 16 28 कितना हो गया, 16 + 28 44। नाउ वर्स्ट केस सिनारियो लीजिए, 44 + 24, 44 + 24 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 68, इस वाले में कितना होगा 68, इस वाले में, इसमें भी काउंट कर लेते हैं, 32 + 8 40 + 9 49, सो यहाँ पे 49। सेकेंड कॉलम 30 + 4 34, 34 + 18, 34 + 18 इज 52, सो यहाँ पे 52, और यहाँ पे 12 + 21 33, 33 + 3 कितना 36, तो इवन इन द वर्स्ट केस सिनारियो यहाँ पे नंबर्स यहाँ से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि किसमें होगा, फोर्थ कॉलम में सबसे ज्यादा ट्रीज प्लांट हुए हैं। ओके, so the answer should be fourth column, as you can see the green one is fourth one, so fourth column में सबसे ज्यादा trees planted हुए हैं। तो यही हमारा सेट था, ब्यूटीफुल सेट, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस करने से मैं आपको रिफ्रेन करूंगा, आई विल एडवाइज यू टू रिफ्रेन फ्रॉम अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चंस। नो, दोज स्टूडेंट्स who would have fallen prey टू सच लेयर कि अच्छा 6 क्वेश्चन है जल्दी हो जाएगा कर लेते हैं, उनको काफी सरप्राइजेस मिले होंगे, अगर उनका टेम्परामेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो ऐसे स्टूडेंट को फिर दिक्कत भी हुई होगी ये वाला सेट लेने में। सो दिस वाज अ वेरी गुड सेट एंड यू कैन सी नो व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एज फार एज DI एंड LR इज कंसिडर्ड। सो ये सेक्शन में आपको काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। So I think so far we have discussed 3 sets of slot 3 of CAT 2020. Uh, in upcoming videos, we'll again come with a few more sets of DIs of CAT 2020. ठीक है, so I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, thank you. See you in another video with an interesting set of CAT 2020. Till then, bye bye. Keep studying.